go with the third type, that is your scoring matrices. ठीक है? Okay. So the scoring systems is called a substitution matrix and are useful when one wants to compare two sequences, right? Dot matrix में हम लोग क्या dot देते हैं. Dynamic programming में we are giving scores, correct? So scoring matrices are basically those matrices जहाँ पे हम लोग scores देते हैं, okay, in short. But it is also called a substitution matrix. They are scoring matrices for nucleotide sequences होते हैं and for amino acids होते हैं, ठीक है? So, but if you're going to compare the two scoring matrices of nucleotides and amino acids, nucleotide sequences का scoring matrices are relatively simple. Okay, a positive value or a high score is given for a match and a negative value or a low score for a mismatch. ठीक है? तो अगर हाई स्कोर या पॉजिटिव वैल्यू कब मिलता है, स्कोर कब मिलता है, जब दो बेसिस सिमिलर है या दो प्रोटीन रेसिड्यूज आर सेम, ठीक है, और सिमिलर. बट अ नेगेटिव वैल्यू और अ लो स्कोर इज गोइंग टू बी गिवन फॉर अ मिसमैच. ठीक है, हम इसके पीछे के वर्किंग में नहीं जा रहे हैं एल्गोरिदम के इसमें, ठीक है. जैसे हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग और डॉट प्लॉट हमने पढ़ा था, हम स्कोरिंग मैट्रिसेस वैसे नहीं पढ़ने वाले हैं. You just have to know the theory behind it. I'm not going to go with the calculations and everything because बहुत complicated हो जाएगा and you guys will get confused. I don't want that to happen. So just study the theory, okay, of the scoring matrices. So just know that whenever there is a match between bases or amino acid residues, positive value is going to be allotted to it. और अगर एक mismatch है तो एक negative value उसको या एक low score उसको दिया जाएगा. This assignment is based on the assumption that the frequencies of mutations are for all the bases. Mutation क्या होता है? Change, right? Which could be natural or it could be induced. That is your mutation. ठीक है, तो ये assignment of the values किस basis पर है? Assuming that the frequency of mutation, यानी वो mutation उस particular gene में कितने बार हो रहा है. That frequency is equal for all the bases when you're talking about nucleotides, right? However, this assumption may not be realistic. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सारे बेसिस के लिए सेम है, ये रियलिस्टिक नहीं है. 4 बेसिस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. We cannot assume that the mutations that occurring in the 4 bases जो फ्रीक्वेंसी है वो सबके लिए सेम है. अगर एडेनिन 2 बार म्यूटेट हो रहा है during the evolutionary period, we cannot assume that adenine, guanine, cytosine, thymine ये सारे bases 2 ही बार mutate होते हैं. It is unrealistic. Why? Observations show that transitions का मतलब क्या होता है? Substitutions between purines and purines और pyrimidines and pyrimidines, right? Purine का exchange या pyrimidine का exchange. प्यूरिन्स क्या है और पिरिमिडिन्स क्या है, मुझे कौन बताएगा? मैं ही बताती हूँ. सो योर प्यूरिन्स आर प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड गुआनिन एंड तुम्हारे पिरिमिडिन्स है साइटोसाइन इन थाइमिन, करेक्ट? तो अगर एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन्स है तो ए के जगह पे जी चला जाता है और जी के जगह पे ए आ जाता है. दैट इज अ ट्रांजिशनल सब्स्टिट्यूशन. या पिरिमिडिन्स बिटवीन पिरिमिडिन्स मतलब साइटोसिन के जगह पे थाइमिन, थाइमिन के जगह पे साइटोसिन डीएनए में, ठीक है? तो ये ट्रांजिशंस जो होते हैं दे अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन ट्रांसवर्जन्स. ट्रांसवर्जन्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशंस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. यानी ए के जगह पे टी, टी के जगह पे ए, जी के जगह पे सी, सी के जगह पे जी, वैसे, या जी के जगह पे टी. Okay, so the transitions occur more frequently than transversions. ठीक है, प्यूरिन प्यूरिन के बीच में एक्सचेंज होता है, पिरिमिडिन पिरिमिडिन के बीच में एक्सचेंज होता है. ए के जगह पे जी, जी के जगह पे ए, सी के जगह पे टी, टी के जगह पे सी. ये जिसकी वजह से जो म्यूटेशंस हो रहे हैं दे आर मोर कॉमन. ठीक है, for proteins or amino acids the score is calculated from the frequency of occurrence of a match of the 2 individual amino acids in revolutionary related
सीक्वेंसेस, बराबर है ना। जो अमीनो एसिड होते हैं उसके हम लोग, या प्रोटीन्स, अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द frequency of occurrence of a match, same kind of protein residues or same kind of amino acids, but in evolutionary related sequences. When they are evolutionary related, तो उसका मतलब क्या होगा, वो लोग काफी सिमिलर रहेंगे, that is why they are evolutionary really related. ठीक है. The score also reflects the frequency that a particular amino acid occurs in nature, as some amino acids are more abundant than the others. जो स्कोर रहता है, उसको जितना स्कोर मिलता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, अगर मैं दो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रही हूँ, उसका जो स्कोर रहेगा, व्हाट इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज अकरिंग इन नेचर. ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली वो अकर हो रहा है नेचर में. ठीक है, बिकॉज सम अमीनो एसिड्स आर मोर अबंडेंट देन दी अदर्स. ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल अमीनो एसिड्स में से देयर आर सर्टेन अमीनो एसिड्स जो बहुत ज्यादा अबंडेंटली नेचर में अवेलेबल है. तो जब मैं इसका स्कोरिंग मैट्रिक्स देखती हूँ प्रोटीन्स का, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू टेल मी व्हाट द स्कोर इज गोइंग टू टेल मी व्हाट, कि कौन सा अमीनो एसिड कितना फ्रीक्वेंटली नेचर में अकर होता है. ठीक है, हायर स्कोर्स इन अमीनो एसिड के स्कोरिंग मैट्रिसेस में, higher scores are going to indicate that the probability that those two amino acids aligned by chance is very small. मतलब by chance वो अगर amino acids या का जो sequences अगर वो align हुआ है, by chance बहुत छोटा chances है कि वो ऐसे randomly align हुआ है. Okay, higher scores are going to indicate that those two amino acid sequences which have been aligned by chance is small. मतलब वो randomly align नहीं हुए हैं. They are evolutionarily related and that is why they have aligned and that is why they have higher scores. Higher score कब होगा, जब उनके protein residues या उनके amino acids are going to be similar. ठीक है, मतलब वो amino acid frequently occur हो रहा है. ठीक है, and lower scores are going to indicate a high probability that two amino acids have aligned by chance and they are evolutionarily unrelated. अगर कम स्कोर होता है एक मैट्रिक्स में, तो उसका क्या मतलब होता है, वो जो दो अमीनो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल एलेनिन एलेनिन, दे आर टू अमीनो एसिड्स. ठीक है, उनका जो अलाइनमेंट हुआ है एक सीक्वेंस में एलेनिन और एलेनिन का, अगर उनको उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कम स्कोर मिला है, तो उसका क्या मतलब होता है, दैट दे हैव अलाइन्ड बाय चांस एंड दे आर एवोल्यूशनरली अनरिलेटेड. बट इफ देयर आर टू अदर प्रोटीन्स लाइक ग्लाइसिन ग्लाइसिन, ठीक है, अगर वो दो अमीनो एसिड्स अलाइन हुए हैं but that particular amino acid has a very high score, it will mean what, कि they are revolutionarily related and that is why they have aligned. ठीक है, यहां तक समझा है हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं? बोलो, जल्दी बोलो. Yes, ma'am. Okay, so moving on. Scoring matrices for amino acids are more complicated because scoring has to reflect the physicochemical properties of amino acid residues. है ना, जो amino acid residues होते हैं या protein residues जो होते हैं, अमीनो एसिड, हर अमीनो एसिड अलग होता है, उसके फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है. ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है कि वो क्यों होता है, करेक्ट. तो जो उसका स्कोरिंग रहता है, इट वो क्या चीज को रिफ्लेक्ट करने वाला है, दो अमीनो एसिड्स सिमिलर है या नहीं, मैच हो रहे हैं या नहीं, करेक्ट. तो इट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड उसका स्कोरिंग, बिकॉज जो कंपैरिजन होने वाला है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, इट इज गोइंग टू हैपन ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज. अगर वो दो अमीनो एसिड्स के फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो उस अमीनो एसिड को स्कोर मिलेगा, अगर सिमिलर नहीं है तो उसको कम स्कोर मिलने वाला है. ठीक है, अगर दे आर सिमिलर तो उसको हाई स्कोर मिलेगा. as well as the likelihood of certain residues being substituted among true homologous sequences. True homologous sequences का मतलब क्या होता है कि they are very much similar or closely related. ठीक है,
certain amino acids with similar physicochemical properties can be more easily substituted than those without similar characteristics. है ना, जो similar जो amino acids होते हैं जिनका बहुत ही similar physicochemical properties होता है, वो एक दूसरे को substitute कर सकते हैं. जैसे bases, nucleotide bases में A की जगह पे G चला जाता है, G की जगह पे A आ जाता है, या C की जगह पे T, T की जगह पे C आ जाता है, वैसे amino acids में भी substitution होता है. ठीक है, but that substitution will happen when the two amino acids are having very similar physicochemical properties. Substitutions among similar residues are likely to preserve the essential function and structural features. However, substitutions between residues of different physicochemical properties are more likely to cause disruptions to the structure and function. तो अगर दो amino acids है, for example X and Y, दो amino acids है which are very physicochemically related, ठीक है, बहुत similar है. अगर उनका substitution हो गया, मतलब जहां पे प्रोटीन में A को X को जाना चाहिए था, वहां Y चला, अमीनो एसिड चला गया है, तो it is not going to affect the structural and the functional features of that protein. उतना वैरी नहीं करेगा. लेकिन अगर एक Z अमीनो एसिड है which is very physically different from the अमीनो एसिड X, उस X की जगह पे वो Z चला गया, since they're having very different physicochemical properties, it is going to disrupt the structure and its function. Okay, ये दो points के बीच में difference समझा है? Substitution between similar and dissimilar residues. समझा है कि नहीं? Yes, ma'am. Okay. This type of मैम एक बार रिपीट करो प्लीज. हाँ, तो जो मेरे सिमिलर रेसिड्यूज है, फॉर एग्जांपल X एंड Y है, दो अमीनो एसिड्स है, तीन अमीनो एसिड्स है मेरे X, Y एंड Z. X एंड Y आर वेरी फिजिकोकेमिकली सिमिलर, उनके फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है. तो जो मेरा X अमीनो एसिड जहां पे सीक्वेंस में लगना चाहिए था, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में जहां होना चाहिए था, उसकी जगह पे अगर Y आ गया तो कुछ फर्क उतना उसके फिजिकल, उसके स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रॉपर्टीज में उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उनके फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशंस among similar residues are likely to preserve the essential functional and structural features, उसका वो मतलब है. बट इन केस मेरा एक अमीनो एसिड X है एंड अमीनो एसिड Z है, जिनके फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी डिफरेंट, not have same or similar physicochemical properties, it is going to change or disrupt और पूरा चेंज कर देगा उसके फंक्शनल और उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स में. ठीक है, अभी समझा? हाँ. सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है ना क्या होता है? एक नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरा, वैसे, बट दे हैव टू बी सिमिलर इन केस ऑफ प्रोटीन्स. सब्स्टिट्यूट टीचर होता है, पता है ना, अगर मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और उस दिन मैं नहीं हूँ, मैंने छुट्टी ले ली स्कूल में, तो एक सब्स्टिट्यूट मैथ्स टीचर आके पढ़ाती है. इंग्लिश टीचर तो आके मैथ्स नहीं पढ़ा सकती बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर. सेम रिलेटेड ओवर हियर विद द रेसिड्यूज, प्रोटीन रेसिड्यूज, ये तुम्हारे अमीनो एसिड्स के साथ. ठीक है, आप समझाओ? Okay. This type of disruptive substitution is less likely to be selected in evolution because it renders non-functional proteins. तो in case evolution के time पर अगर ऐसे हो जाता है जहां substitution होता है between dissimilar residues या amino acids का substitution ऐसा हो जाता है, तो वो normally protein आगे select नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो non-functional हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है. ठीक है. Now scoring matrices for amino acids. हम थोड़ा amino acids का scoring matrices के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So the amino acid substitution matrices, which are 20 by 20 matrices, have been devised to reflect the likelihood of residue substitutions. तो ये जो likelihood of residue substitutions का मतलब क्या होता है? Residue जो substitute होता है उसका कितने क्या chances है? Okay, 20 by 20 मतलब 20 amino acids horizontal, 20 amino acids vertical. ठीक है.
The empirical matrices, which include PAM and BLOSSOM matrices, are derived from actual alignments of highly similar sequences. तो जो matrices हम scoring matrices के दो matrices हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है PAM and BLOSSOM. They are most commonly used matrices for amino acids. ठीक है? By analyzing the probabilities of amino acid substitutions in these alignments, a scoring system can be developed by giving a high score for a more likely substitution and a low score for a rare substitution. तो जहां पे मेरा x y अमीनो एसिड के बीच में सब्स्टिट्यूशन अगर हो सकता है, सिंस आर वेरी सिमिलर, मैं वहां पे उसको एक हाई स्कोर दूंगी, बराबर. बट अगर मेरा सब्स्टिट्यूशन x और z के बीच में हो रहा है, इट्स अ रेयर सब्स्टिट्यूशन, तो मैं उसको लो स्कोर दूंगी. ठीक है, ये समझा यहाँ पे. For given substitution matrix, a positive score means that the frequency of amino acid substitutions found in a data set of homologous sequences, yani they are evolutionarily related, is greater than that would have occurred by random chance. ठीक है? They represent substitutions of very similar residues or identical residues, है ना. इसीलिए तो हम उसको ज्यादा स्कोर दे रहे हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन उस अमीनो एसिड के बीच में हो रहा है, इट इज बिकॉज दे आर आइडेंटिकल. A zero score means that the frequency of amino acid substitutions found in the homologous sequence data set is equal to that expected by chance. तो by chance अगर हो रहा है substitution, तो हम लोग उसको zero देंगे. ठीक है, स्कोर. In this case, the relationship between amino acids is weakly similar at best in terms of physicochemical properties. तो अगर वो बाय चांस अगर वो हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, बट उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके उनकी जो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो लोग बहुत ही कम सिमिलर है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी, यानी कि दे आर वीकली सिमिलर. ठीक है, तब हम उसको जीरो स्कोर देंगे. सिंस दे आर वीकली सिमिलर, दे स्टिल हैव चांस टू सब्स्टिट्यूट. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस है, इसलिए हम उसको जीरो स्कोर दे रहे हैं. A negative score means that the frequency of amino acid substitutions found in the homologous sequence data is less than that would have occurred by a random chance. Positive score 0, negative score. Positive हम कब दे रहे हैं? जब हमें पता है कि वो जो substitution हो रहा है, it is between homologous sequences. Okay. हम उसको जीरो स्कोर कब दे रहे हैं? जब वीकली रिलेटेड और वीकली सिमिलर अमीनो एसिड्स के बीच में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. हम उसको नेगेटिव स्कोर कब देने वाले हैं? जब वो जो उनका सब्स्टिट्यूशन है वो बाय चांस हो रहा है, बट दे आर एवोल्यूशनरली अनरिलेटेड. ठीक है. This normally occurs with substitutions with dissimilar residues. X and Z are dissimilar residues. अगर उनका सब्स्टिट्यूशन होता है, मैं उसको एक नेगेटिव स्कोर दूंगी. ठीक है, और मेरा अगर X और Y का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बीइंग सिमिलर, मैं उसको एक पॉजिटिव स्कोर दूंगी. Now PAM matrices क्या होता है? PAM stands for point accepted mutation. Okay, because of the use of very closely related homologs, the observed mutations were not expected to significantly change the common function of the proteins. It is supposed to be mutations. ठीक है, वो typo हो गया वहां पर. So because of the use, because we are using very closely related homologs, यानी कि they are coming from or descending from the same evolutionary origin. ठीक है, they are closely related homologs. So though उसमें जो mutations है, they are not expected to cause बहुत changes या उसका जो function है प्रोटीन का, उसमें एक drastic change करेगा ऐसा expected नहीं है. ठीक है. Thus the observed amino acid mutations are considered to be accepted by natural selection. तो natural selection माने जब evolution होता है, of course evolution होता है तो कुछ ना कुछ genes में changes होते ही है. करेक्ट है ना. द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स जो तब इवॉल्व हुए थे और हमारे में आज के डेट की ह्यूमन बीइंग्स में बहुत डिफरेंस है. दैट इज हैपेंड व्हाई? बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में क्या क्या होता है? देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द जीन्स. The positive mutations, negative mutations that are going to happen. Mutation का वही मतलब होता है ना, change in your genes.
जीन में अगर कुछ चेंज होता है, इट इज अ म्यूटेशन। तो जो अमीनो एसिड्स में म्यूटेशन जो ऑब्जर्व होते हैं, दे कंसिडर टू बी एक्सेप्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। अगर वो रिजेक्ट होते थे तो वो म्यूटेशन का कुछ मतलब ही नहीं होता था, ठीक है। These protein sequences were clustered based on phylogenetic reconstruction, वही evolutionary relationship के basis पर। The PAM matrices were subsequently derived based on the evolutionary divergence between sequences of the same cluster, ठीक है, यानी एक ही टाइप के। अगर उनमें एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्लस्टर में जो प्रोटीन्स है, जो अमीनो एसिड्स है, उसमें अगर सब्स्टिट्यूशन की वजह से म्यूटेशन जो हुए हैं, चेंजेस जो हुए हैं, उसकी वजह से अगर उनका फंक्शन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, दे बिकम एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। One PAM unit is defined as 1% of the amino acid positions that have been changed, that is diverge हो गया, divergence। इसका मतलब क्या होता है, एक PAM यूनिट जो रहता है उस मैट्रिक्स में एक यूनिट जो रहता है, it is defined as 1% amino acid positions that have been changed because of substitution which resulted to mutation, और 1 amino acid change और 100 रेसिड्यूज। अगर 100 रेसिड्यूज है, उसमें से एक अमीनो एसिड में चेंज होने पर उसको हम 1% डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। PAM1 is a scoring system for sequences in which 1% of the residues have undergone mutation, यानी कि वो 100 में से एक अमीनो एसिड का म्यूटेशन हो गया है, तो we call it a PAM1 scoring system, whereas PAM250 represents 250% mutation, an average of 2.5 accepted mutations per residue, ठीक है। PAM tries to model what happens at long evolutionary distances derived from closely related sequences। तो बहुत ही closely related sequences का वो लोग study करेंगे, they're going to study कि अगर evolution के time पे वो diverge हो गए हैं या क्या हुआ है, that is what your PAM matrices are exactly going to do, okay. The increasing PAM numbers correlate with increasing PAM units and thus evolutionary distances of protein sequences। तो जैसे जैसे PAM नंबर या स्कोर इंक्रीज होता है, हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो एवोल्यूशनरली डाइवर्ज हो गया है। वो डाइवर्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अमीनो एसिड में म्यूटेशंस हुए हैं, ठीक है, या चेंजेस हुए हैं ड्यू टू सब्स्टिट्यूशंस। एक सेकंड ना। Okay, so this picture is your PAM 250 matrix। PAM 250 का मतलब क्या होता है, उसमें 250% mutations है वो accepted है, 2.5 mutations per residue, ठीक है। This is what your PAM 250 matrix looks like. So it's one of the most commonly used scoring matrices, ठीक है। These are your proteins, cysteine, glycine, proline, alanine, blah blah blah, aspartate है, glutamate है, ठीक है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, वैलिन है, ओके, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये तुम्हारे प्रोटीन, ये तुम्हारे सारे अमीनो एसिड्स है। तो इसका स्कोरिंग अगर देखोगे तो जहां पे नेगेटिव स्कोर्स है, इफ यू कैन सी देयर आर नेगेटिव स्कोर्स, तो नेगेटिव स्कोर्स क्या डिनोट करते हैं, कौन मुझे बताने वाला है जल्दी। अनरिलेटेड। जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बिटवीन दीज अमीनो एसिड्स इज बिकॉज ऑफ डिसिमिलर रेसिड्यूज, है ना। डिसिमिलर अमीनो एसिड्स में अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो क्या बोलेंगे हम उसको, हम नेगेटिव स्कोर देंगे। जैसे यहाँ पर -8 दिया है बिटवीन ट्रिप्टोफैन एंड सिस्टीन, प्रोटीन के बीच में नेगेटिव स्कोर दिया है, -8 दिया, वेरी लो स्कोर, बराबर। तो हम लोग उसको क्या मतलब है उसका, इनके बीच में जो लाइक्लीहुड है सब्स्टिट्यूट होने का वो बहुत कम है, बिकॉज दे आर अनरिलेटेड फिजिको-केमिकली, दे आर डिसिमिलर अमीनो एसिड्स। बट इफ यू सी तो ऊपर यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव स्कोर्स भी दिए हुए हैं, है ना, they've given 17 here, तो यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव स्कोर्स भी दिया हुआ है। इट विल मीन व्हाट, कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा between the similar residues is because of an evolutionary relationship between,
वो बाय चांस नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ 0 हो रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग बिटवीन वीकली सिमिलर अमीनो एसिड्स। ओके, ठीक है। ये तुम्हारा PAM 250 मैट्रिक्स है। यू डू नॉट हैव टू नो और स्टडी कि ये स्कोर कैसे दिया, यहाँ पे 12 क्यों है, 17 दिया हुआ है, उसके कैलकुलेशन का डेप्थ में पढ़ना नहीं है तुमको। मैं तुमको एक्सप्लेन कर सकती हूँ बट वो सब तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। तो जो तुम्हें डायनामिक प्रोग्रामिंग याद है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। सो जस्ट नो दिस इज योर PAM 250 मैट्रिक्स। 250 का सिग्निफिकेंस क्या है, 250% mutation, accepted mutation, that is 2.5 mutations, an average of 2.5 mutations for ST, ठीक है। PAM 250 क्लियर है? यस मैम। ओके, आगे पढ़ना है कि स्टॉप करना है? अरे भाई बोलो। मैम कल्याणी मैम का लेक्चर है 3 को। हाँ ठीक है, चलेगा। So I would have anyway stopped because तुम्हें PAM मैट्रिक्स ही खत्म करने को थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। सो होपफुली PAM मैट्रिक्स सबको क्लियर है। एनीवेज वील हैव रिवीजन टुमारो आल्सो, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ब्लॉसम इज अगर रिलेट करेंगे तो इजी है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो हम बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लॉसम मैट्रिक्स हम कल पढ़ेंगे एंड आगे जो सर्च टूल्स है ब्लास्ट एंड फास्टा, विल ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट ब्लास्ट टुमारो, ठीक है। अलोंग विद दैट हमें और क्या करना है, डायनामिक प्रोग्रामिंग रिपीट करना है ना। डॉट प्लॉट तुम सबको क्लियर है? डॉट प्लॉट में डाउट नहीं है ना किसी को अभी? नहीं। ओके गुड। तो वील हैव डायनामिक प्रोग्रामिंग का अगेन टुमारो, ठीक है। मैं बोर्ड पे वगैरह तुम लोग को वापस से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तुम्हारे क्लासमेट्स का जिनका मिस हुआ है प्लीज आस्क देम टू अटेंड, ठीक है। बाद में समझेगा नहीं फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। ठीक है, फिर अपन कल मिलते हैं, बाय बाय।